بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا نہیں سنتا۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ گردے کی پتھری کا علاج: شہد، لیموں کا رس، زیتون کا تیل، 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پئیں۔ پتھری 12 دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو انسان ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ قدرت کا ایک بہت انمول اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 کاش لہسن کا استعمال کریں۔ لہسن کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منہ میں بدبو آ رہی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ میں پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا کہ امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ پیمپرز کا خرچہ ختم کرنے کے لیے جو بچے سوتے میں پیشاب کرتے ہوں، ان کو روزانہ 1 چائے کا چمچ شہد کھلانا بہت مفید ہے۔ خواہشات کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ جوانی کا فارمولہ: روز صبح سویرے نیم گرم پانی کا استعمال، کھانے میں سبزیوں کا استعمال، بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں، انڈے کی زردی چھوڑ کر سفیدی کھاؤ، روزانہ 1 ادرک کچی کھانے کا معمول بناؤ، کچا لہسن روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پی لیں۔ کھانے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ یا شہد چاٹ لیں، چاہے چھوڑ دیں، روزانہ دودھ پیا کریں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے 1 لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد، 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو، اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ جو اپنے والد کی قدر کرتا ہے وہ انسان کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ بھلائی کرتے رہیں، بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی، کچرے کی طرح۔ ریڈ سیلز بڑھانے کے لیے 10 دانے کشمش 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیں، پانی پی لیں۔ لگاتار 1 مہینے تک یہ استعمال کریں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملتے ہیں، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نہانے سے قبل لیموں چاٹ لیا کرو، موٹاپا نہیں ہوگا۔ پخانہ کرنے سے پہلے پانی پی لو، لکوہ نہیں ہوگا۔
दोपहर के वक्त सौंफ खा लो, जुकाम नहीं होता और गला भी नहीं बैठता। महंगे शैम्पू छोड़ें, ये आजमाइश सरसों का तेल 1 चम्मच और दही 2 चम्मच मिलाकर सर पर लगाने से और मसाज करने से चंद दिनों में खुश्की का जड़ से खात्मा हो जाता है। प्याज सूंघते ही बेहोश होश में आ जाएंगे। बेहोशी की हालत में मरीज को प्याज काट कर उसको सूंघाएं, मरीज फौरी होश में आ जाएगा। अंगूर के 10 पत्ते ले लें, पत्तों को अच्छी तरह रगड़ कर उनका पानी निकाल लें और ये पानी मरीज को पिला दें। इंशाल्लाह निमोनिया से फौरी निजात मिल जाएगी। दूध फट जाए तो अफसोस ना करें, बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें। रोटी खाने से पहले खांस लिया करो, दमा नहीं होगा। मच्छरों को भगाने के लिए 1 कप में थोड़ा सा पानी, चंद काफूर की गोलियां डालकर कमरे में रखें, मच्छर नहीं आएंगे। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। काली मिर्च निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करती है। लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है। औरतों की आदत होती है कि बच्चों को ख्वाह मख्वाह किसी न किसी चीज से डराती रहती हैं। सो ये बुरी आदत है, इससे बच्चे का दिल कमजोर हो जाता है। नाजरीन, उबले हुए आलू 3 घंटे में हजम होते हैं और उबले हुए चावल 2 घंटे में, बिरयानी 3 घंटे में हजम होती है। जौ का दलिया दिल के मरीज के लिए राहत बख्शता है और गम को हल्का करता है। अल्लाह पाक रिस्क खोल दे तो दस्तरख्वान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता करता है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अपनी दौलत है तो उसमें से किसी गरीब को दे दो। जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं है। ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तग़फ़ार किया जाए, क्योंकि ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। कलवंजी को रोजाना सुबह नहार मुंह 1 कप नीम गर्म दूध के साथ चुबा कर खाएं। इससे लिकोरिया जैसे मसाइल बआसानी खत्म हो सकते हैं। ज्यादा मुबाशरत की वजह से मर्द को हार्ट अटैक से बचने में मदद मिलती है। कद छोटा हो तो रोजाना नाश्ते में सागोदाने की खीर ऊँटनी के दूध में बनाकर खाएं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कम से कम 6 लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी होती है और 9% इम्कान है आप अपनी जिंदगी में उनमें से किसी से मिलो। बूढ़ा हो जाने पर बचपन छोड़ो, हंसी मजाक और दिल लगी जवानों के लिए रहने दो। घर में रात की रोशनी के लिए सफेद बल्ब इस्तेमाल किया करें। दूसरे बल्ब नजर को कमजोर करते हैं। गरम गरम चीज खाने से दांतों पर काले निशान पड़ जाते हैं। खवातीन में कमर दर्द की वजूहात ज्यादा वजन उठाना, जिस्मानी कमजोरी, डिस्क का हल जाना, लिकोरिया का रहना, उल्टी मतली, पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चुबा कर पानी पी ले, आराम आ जाएगा। छींकें ज्यादा आ रही हों तो हरा धनिया सूंघ लें, छींकें आना बंद हो जाएंगी। पानी में हल्दी डालकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। फालसा ऐसा फल है, अगर 12 दिन खा लिया जाए तो जिस्म की 2 किलो चर्बी पिघल जाती है। पानी के साथ अजवाइन खाने से हड्डियों का गूदा कम नहीं होता। सफेद जीरा खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। होंठ गुलाबी करने हैं तो देसी मोम में लीमू का रस मिलाकर होंठों पर लगाएं। जो ज्यादा बोलता है उसकी दलील में वजन नहीं रहता। जो आलू ज्यादा खाता है उसका वजन ज्यादा बढ़ता है। नक्सीर रोकने के लिए ठंडा पानी पी लो या फिर नाक के ऊपर बर्फ लगाओ, नक्सीर रुक जाएगी। बारीक बालों को घना करना है तो प्याज का गूदा लगाओ, बाल घने हो जाएंगे। दालचीनी ज्यादा खाने से दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है और दिमागी सलाहियत तेज हो जाती है।
गाय के दूध की खीर बनाकर खाने से चेहरे पर कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ती। निहार मुंह नीम के दरख्त की मसवाक बनाकर दांतों पर रगड़ने से जिंदगी भर दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। लाल लोबिया शुगर के मरीजों के लिए दुआ का काम करता है। नाश्ते में कद्दू खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। मिट्टी के गिलास में पानी पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। जिन औरतों के बाल झड़ते हों वो देसी मुर्गे की यखनी पी लें, जो कि रोटी खाने से पेट निकलता नहीं। रोजाना एक केला मर्दाना ताकत को कायम रखता है। रोजाना एक सेब अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करता है। केले का शेक बदन को मोटा करता है। ठंडा पानी पीने से झुर्रियां आ जाती हैं। लहसुन में मर्दाना कमजोरियों को ठीक करने की कुव्वत होती है। लहसुन के इस्तेमाल से खून की शरेयानें साफ होती हैं और खून पतला हो जाता है। नाजरीन, अगर आप चूहों से तंग हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दें, चूहे भाग जाएंगे। खट्टी मीठी चीजें खूबसूरती के लिए जहर हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान रखता है। तेजाबियत से बचने के लिए खाना थोड़ा खाओ, पेट भर कर ना खाओ। बिस्तर के सरहाने को बुलंद रखो। ताज़ा पानी हल्दी में शामिल करके पीने से बलगमी, दमा और खांसी वगैरह दूर करती है। हड्डियों की तकलीफ को कम करती है और हड्डियां मजबूत होती हैं और यादाश्त को तेज करती है। जिस पानी से फर्श धोएं, अगर उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें तो फर्श पर कीड़ियां और मक्खियां जमा नहीं होंगी। अगर भूलने की बीमारी हो तो चंद बादाम, काली मिर्च का पाउडर बना लें, एक बोतल में रख लें। रोजाना निहार मुंह एक चाय का चम्मच खा लिया करो। हाफजा इतना तेज होगा कि भूली बात भी याद आ जाएगी। अंगूर को नमक के साथ खाने से फेफड़े का कैंसर नहीं होगा। अचानक वजन बढ़ना शुरू हो जाए तो सोते वक्त दाएं जानब होकर सोया करें, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। कलवंजी इस्तेमाल करने से बालों का रंग काला करने में मदद मिलती है। दुबले पतले लोग नाश्ते में डबल रोटी खाएं, मोटे हो जाएंगे। घर से चूहों को मार भगाने का आसान तरीका, जिस रास्ते से आते हों उस रास्ते में गंदक की धूनी दें। रीढ़ की हड्डी, घुटनों, जोड़ों वगैरह जिसमें कहीं भी दर्द हो तो चलते फिरते, उठते बैठते या गनियों पढ़ते रहिए, आपका दर्द जाता रहेगा। कारोबार में बरकत डालनी है तो काम शुरू करने से कबल आयतुल कुर्सी पढ़कर कारोबार शुरू करें। जिंदगी बदलने के लिए वक्त जरूर मिलता है, वक्त बदलने के लिए जिंदगी नहीं मिलती। जो औरत खजूर का ज्यादा इस्तेमाल करती है, ऐसी औरत के ज्यादा बेटे होते हैं। जमीर नहीं कांपते, यहाँ जमीनें कांप जाती हैं। कभी कभी आपको अपनी सिमत तब्दील करने की भी जरूरत होती है। कई दफा बर्दाश्त तमाम मसाइल का हल नहीं होती। मालदार के झूठ पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं हम लोग, जबकि गरीब की सच पर भी कोई यकीन नहीं करता। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो इससे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। सब जैसों में सब जैसा नहीं बनना, खुद को मुनफरिद बनाइए ख्यालात, शख्सियत और आदाब के लिहाज से। जैतून का तेल शीशी में डालें और सुरमे वाली सलाई से आंखों में लगाएं, इससे आंखें चमकदार नजर आएंगी और पलकें भी घनी होंगी और आंखों पर खुश्की नहीं आएगी। औरत की जिंदगी में नमाज और कुरान के बाद अगर कोई सुकून देने वाली चीज है तो वो है उसके शोहर की सच्ची, पाक और साफ मोहब्बत। दूसरों के साथ भलाई करो, तकब्बुर ना किया करो, दूसरों की गलतियां माफ कर दिया करो। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। सुबह जल्दी 4 चीजें उठाती हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ।
कोशिश करो कि बद नस्ल लोगों से गहरा ताल्लुक ना रखो, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो इज्जत पर वार करते हैं। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। जिस इंसान से जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो वो फिर इंसान नहीं रह। वो मोहब्बत बहुत गहरी होती है जिसकी शुरुआत दोस्ती से हो। ज्यादा गुफ्तगू की आदत या तो औरतों में होती है या कमजोर मर्दों में। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचें अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती दुनिया। नाजरीन, अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट का इस्तेमाल कर लें तो इससे न सिर्फ दिमागी सलाहियतों पर مثبت असर पड़ता है बल्कि याददाश्त भी तेज होती है। पिसी हुई एक चुटकी कलवंजी निहार मुंह खालिस जैतून के साथ खा ली जाए तो चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता है। चेहरे पर कील मुहासे हों तो नारियल के तेल से मसाज करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।